Question number 76. A boy produces an average power output of 60 watts as he rides his bicycle for 2 minutes. How much useful energy does he expend? यानी कितनी एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो रही है. पहले मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. सो 2 minutes are equal to 2 into 60, 120 seconds. है. Now power is equals to energy divided by time. Power is 60. Power is 60. एनर्जी कैलकुलेट करनी है. टाइम वाज 120 seconds. ठीक है. सो यहाँ डिवाइड हो रहा है. यहाँ जाकर मल्टीप्लाई 60 into 120 is equals to energy. 60 into 120 is 72,000 joules. कितनी आ गई एनर्जी? सो ऑप्शन डी. Question number 77. A machine is very efficient. ये हमेशा वाला same question. It wastes less energy. ये मतलब हुआ. Then question number 78. A box is pulled along a floor by a force of 3 newtons. The friction acting on the box is 1 newton. यानी backward force इतनी है, forward इतनी है, तो net effect कितना आ जाएगा? Net force is resultant forces. Forward minus backward, क्योंकि forward जाता है, so 3 minus 1 is equal to 2 newtons. इसका मतलब 2 newton की force से उसे forward move करवाया गया. ठीक है. How much kinetic energy does the box gain in moving 2 meters? यानी work done कितना है? So work done हम किस तरह से calculate करते हैं? Distance या force. Work done is equal to force multiplied by distance. Okay. So force was 2 and then distance was also 2, तो ये हो जाएगा 2 2s are 4 joules. तो option D. Then question number 79. Brakes are used to slow down a moving car. In which form of energy is most of the kinetic energy converted as the car slows down? जब वो slow down हो रही है तो उसके अंदर friction हो रही है. वो slow रही है तो टायर ज़मीन के साथ ज़्यादा वो करे ताकि वो stop हो सके कार. So friction की वजह से thermal energy produce होती है heat, which is option C. Question number 80. A man carries 80 tiles from the 20 tiles from the ground to the roof of a house. Each tile has a mass of 1.2 kilograms. The roof of the house is 15 meters above the ground. How much work done does a man do against gravity on the tiles in carrying them to the roof? Against gravity means gravitational potential energy. अब ये एक का mass यहाँ पे 20 का mass कितना हो जाएगा? 1.2 into 20, which means that 240. Yes. नहीं 224. Yes, 24 kgs mass हो जाएगा 20 tiles का. So ये total mass है और मुझे अब देखनी है GPE is equals to mgh. mass आ गया 24, gravity is 10 and height थी 15. So 15 into 24 ये आ गया 360 into 10 is 3600. So option D हो गया. 3600 joules energy लग रही है इन सारे टाइल्स को ऊपर लिफ्ट करते हुए. Question number 81. A car is moving along a straight horizontal road. The car has 1.6 megajoules of kinetic energy. Mega means to raise to 10 raised to power 6 होता है. हाँ मतलब 10 raised to power 6 यानी हो जाएगा 16 2 3 4 5 joules होता है. ठीक है. The car accelerates for 20 seconds until the kinetic energy of the car increases to 2.5 megajoules. What is the minimum average power developed? So अब किलो में कन्वर्ट करने से मतलब मेगा को किलो में कन्वर्ट करने के लिए I'll do multiply by 1000. ठीक है. multiply by 6000 मतलब multiply by 1000 multiply by 1000 में तब करती है जब मुझे joules में कन्वर्ट करने से हो जाएगा 600 किलो joules 2500 किलो joules. मिनिमम पावर डेवलप्ड बाय द कार इंजन फॉर दिस एक्सेलरेशन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इंक्रीज हो रही है. ओके पहले इतनी थी तो मुझे डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी चेक करना 2.5 minus 1.6. दिस इज 0.9 किलो joules. यस. सो इन्होंने क्या कहा एवरेज पावर डेवलप्ड. नहीं सॉरी मैंने इसको कन्वर्ट किया था ना 2500 minus 1600 तो ये हो गया 900 किलो joules. Okay, in 20 seconds. So power is equal to energy divided by time. So energy divided by time is 20 is 0 cancel. 90 divided by 2 is 45. तो आंसर आ गया 45 watts. Option C. Then question number 82. A box of mass 8 kg is lifted from the ground and placed on a shelf. The box gains 100 joules of potential energy. The box falls off the shelf. Air resistance can be ignored. What is the speed of the box at which it hits the ground? तो इसमें मैं वही फॉर्मूला यूज करूँगी. V is equals to under root 2g. इसमें बता देता हमने किस तरह से डिराइव किया. तो under root 2 ग्रेविटी कितनी है 10. हाइट कितनी है 8. सो अंडर रूट 2 8 हो गया. नहीं हाइट नहीं गिवन. सॉरी हाइट मुझे गिवन नहीं है. सो व्हाट कैन आई डू इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाती हूँ मैथ्स और काइनेटिक एनर्जी से. के इज इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर. के ई इज 100. 1/2 मैस इज 8 into v स्क्वायर. तो 100 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 8 इज 4 और ये into v स्क्वायर. सो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. ठीक है. 100 डिवाइड बाय 4 इज 25 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. तो दोनों साइड अंडर रूट ले लूँगी. अंडर रूट 25 इज 5 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी. ऑप्शन बी. Then question number 83. A force of 25 Newton acts on an object. The work done by the object is 400 joules. How far does the object move in the direction of the force? So work done is equals to force multiplied by distance. Work done is 400. Force 25 है distance मुझे calculate करना है. Divide हो जाएगा 400 over 25 is equals to D. 400 divided by 25. ये आ गया 16 meters. क्योंकि मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है तो किलोमीटर सेंटीमीटर वाली ऑप्शंस कैंसिल हो गए और 16 meters. Which energy resource does not have sun as the original source? तो वो तीन होती है जियोथर्मल, न्यूक्लियर एंड टाइडल. यहाँ पे कौन सी लिखी हुई जियोथर्मल. ऑप्शन डी हो गई. क्वेश्चन नंबर 85. विच एनर्जी रिसोर्स इज नॉट रिन्यूएबल. जियोथर्मल मैंने बताया था कि रॉक्स होती है जो अर्थ की कोर में हीट होती है उस वजह से होती है तो वो हमेशा प्रेजेंट होती है अर्थ की कोर में. सो इट्स रिन्यूएबल. न्यूक्लियर फिजन के लिए हमें न्यूक्लियर फ्यूल रिक्वायर्ड होता है. सो इट्स नॉट ऑलवेज अवेलेबल. तो रिन्यूएबल नहीं है. नॉट रिन्यूएबल. राइट. सोलर सन हमेशा अवेलेबल है. विंड हमेशा अवेलेबल है. सो ऑप्शन बी इज नॉन रिन्यूएबल. Question number 86. The diagram shows part of a roller coaster ride with the car at different positions. The car runs freely down from position X to Y and up the hill other side. अच्छा X पे क्या है वो रेस्ट पे है मतलब हाइट पे रेस हुई है तो इट यहाँ पे जीपी है. जैसे जैसे नीचे जा रही है जीपी कन्वर्ट हो रही है के में क्योंकि यहाँ स्पीड इंक्रीज हो रही है. स्लोप की वजह से यहाँ के ज़्यादा है. देन यहाँ पे जीपी नहीं होगी. यहाँ हाइट नहीं आती. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ द कार एज इट मूव्स फ्रॉम X to Y.
सो काइनेटिक एनर्जी x टू y में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जीपी उस कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में. सो दैट मीन्स कि जो जीपी है वो डिक्रीज हो रही है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस तभी काइनेटिक इंक्रीज होगी. एट अ टाइम दोनों इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि कोई तीसरी फॉर्म नहीं है जहाँ अभी आ रही होगी. और वैसे भी ब्रेक सप्लाई नहीं हो रही, स्लो डाउन नहीं हो रही रोलर कोस्टर की, फ्रिक्शन हो. सो के ई इंक्रीजेस, जीपी डिक्रीजेस. सो ऑप्शन सी हो गया. Then question number 87, a car of mass 500 gram is moving at 10 meter per second. The engine does work on the car and the speed increases to this. How much work done is done by the car to increase the speed of the car? Okay, हम speed increase करें तो कितना वर्क डन है, वो काइनेटिक एनर्जी होगी. के ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू डेल्टा वी स्क्वायर. यानी मैं चेंज इन वेलोसिटी देखूंगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 इंटू मैस 500 इंटू डेल्टा वी. कितना आगे चेंज इन वी, 16 माइनस 10 का स्क्वायर. तो ये जाएगा हाफ ऑफ 500 इज 250 इंटू 16 माइनस 10 इज 4 स्क्वायर. तो ये आ गया 250 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16. सो 250 इंटू 16, 25 इंटू 16 गया 4000. मैंने 25 इंटू 16 किया ना. वेट, हाउ मच वर्क डन, 4500 किलोग्राम इसका वेट था. कुछ गलत तो नहीं है इसमें. ओके 4000 आ रहा है. हाउ मच वर्क डन इज डन, एक मैं देखती हूँ. ओके मुझे समझ में आ गया. वैसे मुझे समझ नहीं आया कैसे क्यों है, लेकिन इसमें इंडिविजुअली पहले इस स्पीड पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी, फिर इस वेलोसिटी पे, और फिर उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो पहले के ई इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर. 1/2 इंटू पहला मैथ्स दोनों में 500 रहेगा. 500 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब पहले 10 है, सो 10 स्क्वायर. ये हो जाएगा 1/2 इंटू 500 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100. 500 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, हाफ ऑफ 500 मल्टीप्लाई 100 इज 50,000. ये 4 जीरोज आ गए. सो हाफ ऑफ 50,000 इज 2500 तो नहीं होगा, 25 और 3 जीरोज, यस 2500 जॉल्स. फिर अब दूसरी जो 16 मीटर पर सेकंड वाली है, इस पर कैलकुलेट करेंगे. अब मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ. सो ये हो गया के ई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर. दोबारा से मैथ्स वही 500 हो गया. 1/2 इंटू 500 इंटू 16 का स्क्वायर. सो 1/2 इंटू 500 इंटू 16 का स्क्वायर होता है 16 स्क्वायर इज 256 इंटू 256, और फिर 256 मल्टीप्लाई बाय 500. ये आ गया हाफ ऑफ 128,000. सही है. सो अब इसका हाफ कर लेते हैं चेक. ये आ गया 640,000, नहीं 640,000. और मैं दोबारा से देख लेती हूँ. 128,000 डिवाइड बाई 2 है 640. हाँ ये वैल्यू 24 में. अब मुझे डिफरेंस देखना है. एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है. सो डिफरेंस इज डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू 64000 माइनस 25000. सो 6 ये आ गया 39,000 जॉल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो इसका आंसर है सी, ये 39,000. Question number 88. An electric motor uses 1000 joules of electrical energy. It provides 450 joules of useful output energy. What is the efficiency of the motor? To get input here, total input, or useful output here. So efficiency is equals to useful output divided by total input multiplied by 100. So output 450 है और input 1000 multiplied by 100. ये इससे cancel out. Efficiency सीधी सीधी आ गई 45%. Option C. Question number 89. To calculate the power produced by a force, the size of the force must be known. What else needs to be known to calculate the power? Force की वजह से क्या होता है, एक वर्क डन होता है. सो यहाँ पे हम यूज़ करें पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, राइट. सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, तो उन्होंने कहा फोर्स पता होनी चाहिए, तो उसके अलावा हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम. डिस्टेंस एंड टाइम वी नीड बोथ. ऑप्शन ए. Then question number 90. A woman of mass 50 kilograms has 81 joules of kinetic energy. What is her speed? So kinetic energy is equals to 1/2 mv square. काइनेटिक एनर्जी 81 है. 1/2 मैस हो गया 50 था ना, हाफ होने के बाद 25 है. सो मैस हो गया 50 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर मैंने कैलकुलेट करना है. सो 81 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 50 इज 25 इंटू वी स्क्वायर. अब मुझे वी स्क्वायर कैलकुलेट करना है. सो ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. 81 डिवाइडेड बाई 25 इज, मैं 2 डेसिमल प्लेस से लूँगी, जो भी अच्छा 2 डेसिमल लूँगी. 3.24 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. अब मैं दोनों साइड्स में अंडर रूट ले लूँगी, ठीक है. तो मुझे वी मिल जाएगा अंडर रूट 3.24 करके. सो वी इज इक्वल्स टू 1.8 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ ऑप्शन सी. ये आ गया. क्वेश्चन नंबर 91. What is the source of the sun's energy? तो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, होते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियर. ये होता है केमिकल रिएक्शंस, नो. बीटा एमिशंस, नो. न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, फ्यूजन होती है. सो ऑप्शन डी. Question number 92. An object of mass 4.5 kg is traveling at 7 meter per second. How much kinetic energy does the object have? So Ke is equals to 1/2 m v square. ठीक है. So 1/2 mass कितना होता है 4.5 into v square is 7 square. तो हो जाएगा 1/2 into 4.5 into 7 square होता है 49. So 49 into 4.5 करना है. 49 into 4.5 is 220.5. So half of 220.5. इस पर by 2 करना है. by 2 is ये आ गया almost 110. So 110 joules. Kinetic energy, which is option C. Question number 93 is a number of ways in which we use energy are listed, in which is the ultimate source of energy not the sun. तो इसमें tidal, nuclear, geothermal होते हैं. Energy is provided by a horse to pull a cart. तो अगर वो कार्ट पुल करे या तो फ्रिक्शन हो रही होगी या काइनेटिक वाली होगी. सो ये नहीं. एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक, दिस इज इसके लिए सन है. ओके. एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियर पावर स्टेशन. तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए सन मेन सोर्स नहीं है. ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल्स जो होते हैं उनका अलग तरीके का सिस्टम होता है. एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय विंड मिल. तो विंड मिल के लिए सन चाहिए होता है. दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन सी हो गया करेक्ट.
Question number 94 is, which situation involves no work being done and no energy being transferred? Okay, so a car skidding to stop on a road, यानी वो stop होना चाह रही है, वो speed से चल रही है, तो इसमें friction होती है, so energy transfer हो रहा है from kinetic to friction, from kinetic to thermal. So this is wrong. A crane lifting a load, अगर वो load को lift करे, कोई force apply होगी, किसी distance से lift करना चाह रहा है ना, so force multiplied by distance equal भी आ गया, this is wrong. A heavy load hanging from a strong wire, यानी वो बस hang हो रहा है, कोई उसमें मतलब अगर एक किसी height पे भी hang हुआ हुआ उसमें GPE है, लेकिन कोई work done नहीं हो रहा है ना, कोई force apply नहीं की हुई, बस वो hang हो रहा है और कोई energy transfer भी नहीं हो रहा, so ये correct हो गया. स्टूडेंट ड्रैगिंग अ बिग बॉक्स ओवर अ रफ फ्लोर, तो रफ फ्लोर पे वो ड्रैग कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन हो रही है. देन क्वेश्चन नंबर 95, अ स्टूडेंट सजेस्ट्स दैट देयर आर सेवरल वेज फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी टू अ स्मॉल स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ आयरन ऑन अ स्मूथ टेबल. ही मेक्स द फॉलोइंग सजेशंस. ओके, ट्रांसफर करनी है एनर्जी फ्रॉम स्मॉल स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ आयरन, अच्छा आयरन के ब्लॉक से टेबल तक. ओके, सो पहला है हीट इट, यस हीट से थर्मल एनर्जी आगे, शाइन लाइट ऑन इट, अगेन लाइट एनर्जी, देन पास अ करंट थ्रू इट, तो करंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऑल थ्री मेथड्स आर करेक्ट, विद सजेशंस आर करेक्ट, तीनों मेथड्स आर करेक्ट. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 96, एन इंजन प्रोड्यूसेस 240 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी इन 2 minutes. 2 minutes मीन्स 120 seconds, यानी 60 into 2. व्हाट इज द पावर आउटपुट? पावर आउटपुट के लिए हम करेंगे पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. एनर्जी इज 240 डिवाइडेड बाय टाइम था 120. इसको मैंने किलो में रहने दिया क्योंकि वॉट्स के ऑप्शन आगे किलो में, सो इसका आंसर है 240 डिवाइड बाय 120 2 किलो वॉट्स. ऑप्शन ए. Question number 97. Okay, this question is about 4 methods used to produce electrical energy. Which method has a correct description? Okay, hydroelectric power station is a renewable resource. Yes. Does it emit carbon dioxide? No, it does not. So ये correct हो गया. बाकी भी देख लेती हूँ. A coal-fired power station renewable है. No, ये बात correct हो गई. Emits carbon dioxide. Yes. जब हम coal को burn करते हैं तो carbon dioxide produce होती है, which is a greenhouse gas. तो ये गलत हो गया. Then a wind turbine energy source is renewable. It is a renewable energy resource. तो ये बात गलत हो गई. फिर emits carbon dioxide. No, it does not. दोनों बातें गलत हैं. देन अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन एनर्जी इज रिन्यूएबल. नो, एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड. न्यूक्लियर पावर स्टेशन, नो, न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते. सो यहाँ भी दोनों बातें गलत, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गई. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 98. अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग ऑन अर्थ. एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. इसका मतलब जितनी जीपीई थी सो वो काइनेटिक में ट्रांसफर हो गई. व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज फॉलन 5 मीटर्स? तो यहाँ मैं यही फॉर्मूला यूज करूँगी, v इक्वल्स टू √2g, जो मैंने पहले डिराइव कर लिया था. इसमें मुझे सिर्फ हाइट गिवन है, मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. v इक्वल्स टू √2 इंटू ग्रेविटी 10 इंटू हाइट कितनी है 5. 2 5 10, नहीं हाँ 2 5 10, 10 5 50. सो v इज इक्वल्स टू √50. √50 की वैल्यू होती है, √50 इज 7.07. 7.07 इज ऑलमोस्ट 7.1 मीटर पर सेकंड. मीन्स की वेलोसिटी कितनी आ गई 7.1. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 99. द पावर इनपुट टू एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज दिस. द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज दिस. हाउ मच पावर इज वेस्टेड? सो पहले मैं देखती हूँ कि मुझे पावर यूजफुल कितनी है. यूजफुल पावर आउटपुट. ओके, और फिर मैं से टोटल से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे वेस्टेड मिल जाएगा. या मैं अच्छा मैं दो तरीकों से कर सकती हूँ. या मुझे पता चल गया कि एफिशिएंसी ये है, यानी मुझे 85% जो पावर मिल रही है आउटपुट वो यूजफुल है. तो इसका मतलब वेस्टेड कितनी होगी? 100 माइनस 85 इज 15%. तो इसका मतलब वेस्ट वाली की एफिशिएंसी 15% है कि किस हिसाब से वो वेस्ट करिए. तो मैं दो मेथड से कर सकती हूँ कैलकुलेट. सो मुझे उसके लिए मैं पेज लेती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत कम स्पेस है. सो आई जस्ट नीड सम. सो एफिशिएंसी is equals to useful power output over total power input multiplied by 100. तो सबसे पहले मुझे उन्होंने बताया कि एफिशिएंसी कितनी 85 इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट मुझे कैलकुलेट करनी है. उसको मैं क्या ले लूँगी एज एक्स. इनपुट कितना है टोटल 400 मल्टीप्लाई बाय 100. अब क्या हो रहा है कि ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया. 85 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 400. अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 85 इंटू 400. राइट, सो 100x इज इक्वल्स टू 85 इंटू 400 के लिए 85 400 इज 34 1 2 3000 हो गया. 24,000 नहीं, सॉरी 340,000 हो गया. सो x इज इक्वल्स टू 340,000 डिवाइडेड बाय 100. यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. सो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? पावर यूजफुल पावर आउटपुट कितना आ गया? 3400 वॉट्स. ठीक है, ये इसका मतलब सॉरी 340 है, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया था, सॉरी. सो अगर ये मेरे पास यूजफुल पावर आउटपुट है, सो वेस्ट कितना हो गया? टोटल माइनस यूजफुल कर लूँगी. सो वेस्टेड वाली आ गई टोटल माइनस यूजफुल पावर. सो 400 माइनस 340 इज इक्वल्स टू 60 वॉट्स. सो मतलब 60 वॉट्स मेरे पास वेस्टेड है. ऑप्शन ए. लेकिन मैं दूसरे मेथड से ट्राई कर सकती हूँ. उसमें मैं क्या करूँगी? मैंने अभी बताया था कि टोटल एफिशिएंसी 85% है यूजफुल पावर जिससे मुझे मिल गई. तो वेस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 15, सॉरी 100 माइनस 85, तो 15%, यानी इतनी नॉन एफिशिएंट है जो मशीन है. ओके, सो अब मैं दोबारा से फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ. एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वेस्ट पावर आउटपुट, क्योंकि मैंने वेस्ट पावर की एफिशिएंसी डिवाइड बाय टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. सो अब इस वेस्ट की एफिशिएंसी कितनी है? 15%. सो 15 इज इक्वल्स टू वेस्ट पावर आउटपुट में एज एक्स ले लेती हूँ एंड टोटल पावर इनपुट वही 400 मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये यहाँ की डिवाइड हो जाएगा. 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 400. क्रॉस मल्टीप्लाई 100x is equals to 15 into 400, right? So 100x is equals to 15 4 60 और ये दो जीरो आ गया. So x is equals to 6000 divided by 100. 0 0 0 कैंसिल हो गया. So x is equals to 60 watts. और यहाँ पे भी क्या था? 60 watts. इस हिसाब से ऑप्शन ए was correct. Next question. A stream flows out of a lake down the side of a hill. What describes best the change in what best describes the change in energy stores? ओके, सो एनर्जी स्टोर. अगर स्टोर है स्ट्रीम है यानी वो ओके डाउन द हिल, यानी वो हिल के ऊपर स्टोर हुई थी. सबसे पहले हाइट है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और उसके बाद जब वो गिर रही है सो इट मीन्स कि वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है. और काइनेटिक प्लस इंटरनल एनर्जी विच इज थर्मल एनर्जी, क्योंकि उसका रोड के साथ हिल के साथ फ्रिक्शन हो रहा होगा. सो ऑप्शन बी. देन क्वेश्चन नंबर 101. द एनर्जी
input to a device is E. सही है. The amount of energy wasted by the device is W, which expression gives the efficiency of the device. Efficiency में जो मुझे output मिल रहा है वो क्या होगा? Total minus waste. Efficiency is equals to useful energy output, क्योंकि energy की terms है over total input multiply by 100. ठीक है. सो अब मुझे ये कैलकुलेट करना है. उसके लिए क्या हो रहा है, मैंने यूजफुल एनर्जी आउटपुट किस तरह से मिलेगी, ये टोटल इनपुट माइनस वेस्ट करूँगी, टोटल इनपुट माइनस वेस्ट. सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ई माइनस डब्ल्यू वाली. ठीक है. अब मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, टोटल एनर्जी इनपुट विच इज ई. सो ई माइनस डब्ल्यू ओवर ई मल्टीप्लाई बाय 100. ये करेक्ट ऑप्शन है सी. देन क्वेश्चन नंबर 102. A builder lifts 30 bricks from ground onto a platform of 2 meters high. Each brick has a mass of 4 kilograms. Okay. What is the work done against gravity? यानी GPE कितनी आ रही है by the builder lifting the bricks. अब सारी ब्रिक्स की बात हो रही है तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास इज इक्वल्स टू एक का 4 है तो 30 का कितना हो जाएगा 30 into 4 विच इज 120 kg. ओके. सो अब मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी. GPE. अच्छा हाइट क्या है 2 मीटर्स. GPE इज इक्वल्स टू mgh. मास आ गया 120, ग्रेविटी वाज 10 एंड हाइट इज नहीं सॉरी हाँ मास क्या एंड दिस इज 2 हाइट. सो 120 into 20 ये हो जाएगा 2400 जॉल्स. तो 2400 जॉल्स है मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन इन विच ऑर्डर इज एनर्जी ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस. तो सबसे पहले कोई बॉयलर होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल डालते हैं. सो स्टीम प्रोड्यूस होती है. स्टीम प्रोड्यूस होती है वो टर्बाइंस को रोटेट करवाती है. रोटेटिंग टर्बाइन से जनरेटर में जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रांसफार्मर पे डिलीवर की जाती है. सो न्यूक्लियर फ्यूल जनरेशन जनरेटर जो होता है स्टार्टिंग में नहीं आता. क्वेश्चन पहले भी किया था. फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल टू बॉयलर, बॉयलर से टर्बाइन एंड टर्बाइन से जनरेटर आगे ट्रांसफार्मर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 104. A motor of power P exerts a force F on an object. ठीक है. The object moves a distance d during the time t that the force acts. Which equation is used to calculate time t? So force is equal नहीं work done is equals to force multiplied by distance है और power is equals to work done over time. So this means power is equals to F d over time, right? अब मुझे time calculate करना है. So मैं इस formula को किस तरह से rearrange कर सकती हूँ that ये यहाँ आ जाएगा Pt is equals to F d. P को subject बनाना है so P is equals to F d divided by T. तो ये formula हो गया option B. Then question number 105. A scientist uses an electric motor to lift a load through a vertical distance 2 meters. ठीक है. He then increases the input power to the motor and repeats this experiment. The efficiency of the motor does not change. Which row correctly describes the effect that this has on the useful work done lifting the load and the time taken to lift it. Okay, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि efficiency change नहीं हो रही है. efficiency हमें क्या देती है, useful energy output यानी work done जो useful work done होता है. So it will remain same क्योंकि efficiency same है. time taken पे हम effect देखते हैं. उन्होंने क्या कि increases the power output. Power is equal to energy divided by time. ओके. सो एनर्जी हम कांस्टेंट रखें क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, क्या कांस्टेंट है हमारे पास, एफिशिएंसी कांस्टेंट, मींस एनर्जी इज कांस्टेंट, सी स्टेज द सेम. सो पावर का रिलेशन टाइम के साथ आएगा इनवर्स. इफ वी आर इंक्रीजिंग द पावर सो इट मींस के द टाइम विल डिक्रीज. सो द टाइम टेकन डिक्रीजेस. ऑप्शन बी होगा. क्वेश्चन नंबर 106. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बी ऑब्टेन बाय न्यूक्लियर. अच्छा ये वही वाला न्यूक्लियर फ्यूल से बॉयलर, बॉयलर से टर्बाइन, टर्बाइन से जनरेटर. ऑप्शन डी. क्वेश्चन इज अ बॉक्स ऑफ मैस m स्लाइड्स डाउन स्लोप ऑफ लेंथ l अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. ये पहले कर दिया था. सो इसमें हम ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर रहे थे, ये वर्क डन के लिए. सो इसमें था mgd वाला था और fl वाला था. ये ऑप्शन करेक्टली मैंने पीछे किया सॉल्व पूरा डिटेल से. क्वेश्चन नंबर 108. व्हिच एनर्जी रिसोर्स हैज अ सन एज इट्स ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. तो न्यूक्लियर जियोथर्मल टाइडल इन तीनों के लिए नहीं है. ऑयल इज अ फॉसिल फ्यूल, उसके लिए सन रिक्वायर्ड है. सो ऑप्शन सी. Question number 109. A man attached to an elastic cord jumps from a platform. He falls 60 meters before standing to rise. The length of the unextended cord is 30. So it means वो कितना increase हुआ है. अच्छा देखिए. The diagram shows 4 successive stages in his fall. In which position is elastic strain energy and kinetic energy present? Kinetic energy में motion चाहिए होता है, okay? And elastic strain energy means elastic stretch होने की वजह से जो हमें energy मिल रही होती है. So इसकी option मैं बताती हूँ. A में क्या है, पहली बार kinetic energy नहीं है क्योंकि उसका कोई motion नहीं है, वो still है. और तो elastic strain भी नहीं है. अब यहाँ पे क्या है 30. जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो मूव करता हुआ है, ओके, के ई इज प्रेजेंट. लेकिन इलास्टिक एनर्जी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो 30 मीटर उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, मतलब अनस्ट्रेच लेंथ है, स्ट्रेच अभी हुआ ही नहीं है. सो देयर इज नो इलास्टिक स्ट्रेन प्रेजेंट हुआ है. यहाँ पे क्या वो मूव कर रहा है, काइनेटिक है, इलास्टिक स्ट्रेन भी है क्योंकि वो स्ट्रेच हो गया. सो ऑप्शन सी. लेकिन डी क्यों गलत है? इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया कि वो 60 तक ही फॉल 60 मीटर बिफोर स्टार्टिंग टू राइज, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक वो रीच है. यहाँ के वो एक स्टॉप लग गया. सो 60 मीटर पे वो स्ट्रेच है, इलास्टिक स्ट्रेन इज प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक नहीं है क्योंकि उसकी वेलोसिटी नहीं है, वो स्टिल हुआ. उसके बाद वो वापस ऊपर आना स्टार्ट हो गया. ये मैक्सिमम पोजीशन थी. सो यहाँ पे मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो. ऑप्शन डी नहीं हो सकता एंड सी इज करेक्ट.